आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीजेपी पार्टी ऑफिस बिदर में बीजेपी की प्रेस मीट आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के अलावा सभी बीजेपी नेतागण रहे उपस्थित। एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का किया गया दावा, कांग्रेस पर साधा निशाना। जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस बिदर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया शाखा कर्नाटक NSUI की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। CDS जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में क्रैश। कांग्रेस नेता राशिद खान ने वसीम रिजवी का सिर लाने वाले को 25 लाख का इनाम देने की बात कही। रिजवी पर इस्लाम को लेकर गलत बयानबाजी करने के लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी पार्टी ऑफिस बिदर में बीजेपी की प्रेस मीट आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, MLC उम्मीदवार प्रकाश खंडरे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष के अलावा रघुनाथराव मलकापुरे, MLC सूर्यकांत नागवरपल्ली, शैलेंद्र बेलदाड़े, ईश्वर सिंह ठाकुर और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के राज्य कार्यदर्शी ईश्वर खंडरे, विधायक राजशेखर पाटिल और उनकी टीम हताश होकर वोटरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खुबा ने कहा कि मैं मतदाताओं से ये कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के डराने से न डरें और न ही उनके पैसे स्वीकार करें। इस अवसर पर MLC उम्मीदवार प्रकाश खंडरे ने कहा कि राज्य कांग्रेस के कार्यदर्शी ईश्वर खंडरे ने कहा है कि प्रकाश खंडरे कांग्रेस में थे। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर खंडरे को पार्टी ने ऊंचा स्थान दिया है तो तुम्हारी आंखें सर पर चली गई हैं। प्रकाश खंडरे ने कहा कि मैं सबसे पहले किसी पार्टी का सदस्य बना तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस अवसर पर रघुनाथराव मलकापुरे ने भी संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। जिल्ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಹತಾಶರಾಗಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡೋದು, ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ। ತಾಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹಣ ಕೊಡೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು। ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರು ಅವರ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ, ಅವರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌಡೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮತದಾರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಇರ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ
ಚಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪರ ನಿಲ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಯಾವ. ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಏನದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿರಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಮಾನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿನಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬಂದ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹೊಡೆದಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನೀವು ಯಾವ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಿದ್ರು ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಹೊಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ. ನಂದು ರಾಜಕೀಯ ಏನದ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ ತರ ಏನದ ಬಾಪ್ ಕಮಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಪ್ ಕಮಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರಿ. ಈ ತರ ಏನದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನದ ಒಂದು ಮಾನಯಿಕರ ಮಾತಾಡಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತ ಈ ದೇಶ ಏನದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನದ ಪವಿತ್ರ ಏನದ ಇವ ಸಂವಿಧಾನ ಏನದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ತಾವು ಶಾಸಕರಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಟ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎದುರು ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಎದುರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಏನದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೀವು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಡ್ರಿ. ತಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಓಡಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತ ತಾವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತು, ನೀವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿದಾರ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡೋಣ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಓಡೋಗಿದ್ದು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಬೀದರ್ನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿ ವಿಜಯಾದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಈ 3 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲುವ ಪಕ್ಷ, ಈ ಸೋಲುವ ಡೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನ
ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ KC ಕೊಂಡಯ್ಯನವರು जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस बिदर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया शाखा कर्नाटक NSUI की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP को जो राज्य सरकार ने शुरू किया है उसके बारे में बात की गई और इस एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों को किसी किस्म की सुविधाएं ना दिए जाने की बात कही गई। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया शाखा कर्नाटक NSUI के राज्याध्यक्ष कीर्ति गणेश ने संबोधित करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के बारे में विवरण किया। कीर्ति गणेश ने इस पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस NEP को राज्य सरकार ने जल्दबाजी में शुरू किया है। इसे शुरू करने से पहले इस संबंध में ना कोई विचार विमर्श किया गया और ना ही कोई तैयारी की गई। KP न्यूज के कैमरामैन साबिर खान के अनुसार कीर्ति गणेश ने कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है और छात्रों को कोई सुविधा नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो छात्रों को विभिन्न सुविधाएं दे। इस अवसर पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया शाखा कर्नाटक के NSUI के रफीक अली ने भी संबोधित किया और इस संबंध में बताया। नया NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने चालू किया, हमारा राज्य सरकार ने पहला चालू कर दिया। इसके लिए कोई पूर्व तैयारी भी नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, सिलेबस बुक्स कुछ भी तैयार नहीं है। ये लोग ऐसे ही चालू भी कर दिया। इसमें क्या है NEP पॉलिसी में, एक पॉलिसी बनना है तो पहले चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है। इसमें जो आगे की जो शिक्षण नीति है उसमें सारी अंश जो बैठा रहता है, कैसे पढ़ाई करना, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे होता है, PU बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे होता है, डिग्री में क्या होगा, ऐसे सभी सारे अंश जो है वो जो प्रोसीजर है एजुकेशन सिस्टम का, वो पॉलिसी एक अर्जेंट में ये लोग चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी हम सब भी लिख कर आए, आगे से अभी 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स ही नहीं रहेगा। ये लोग सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन जो करना चाह रहे हैं, उस सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशंस लेके ये लोग स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशराइज करेगा। ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है, वो सब्जेक्ट ही पढ़ना है, कैसे हो सकता है? ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइवेटाइज एजुकेशन को ही प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आगे के दिन में हम देख सकते हैं पैसा दिया तो मार्क्स कार्ड लेके जा सकता है, ऐसा है ये पॉलिसी। और कोई स्टूडेंट्स हो उसके लिए हम स्कॉलरशिप देना है, फ्री बस पास, बुक्स, यूनिफॉर्म्स करके स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है कि आप पढ़ाई करो। इसमें स्कॉलरशिप्स का ही कुछ मेंशन नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन का बात नहीं करते हैं लोग, इक्वल एजुकेशन का बात ही नहीं है। इस मुद्दा पे हम लेकर हमारा NSUI से तरफ से हम इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये बताना चाह रहे हैं, देखो भाई आप पॉलिसी लेकर आए हैं, उसके बारे में आप चर्चा करो, जो अच्छा है। ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ NSUI ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ NEP ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ NEP ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಅಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ NSUI ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ NSUI ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ। ಸಚಿನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಫುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಕ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ರಿವ್ಯೂನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇವರು ABP ಅವರು ಮತ್ತು RSS ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ। ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 13ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ NEP ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸಹ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಕಾಲೇಜ್। जिला परिषद ऑफिस बीदर में आज जिले के तमाम PDOs ने धरना दिया।
और जंगी के पीडीओ रमेश लोहार को श्रद्धांजलि दी, जिसकी लाश तेलंगाना में पाई गई थी। इन पीडीओज ने इंसाफ की मांग की। पीडीओज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जाए। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा की रिपोर्ट। विरुद्ध अधिकारी बन के जो ग्राम पंचायत जमगी में काम कर रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर पड़ा जिसके वजह से उन्हें आत्महत्या तक जाना पड़ा, उसके बारे में तनिका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दिन जो हम पीडीओज जो प्रतिदिन हमारे साथ जो हरेसमेंट हो रहा है, जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है काम का, सो प्रेशर कम करके जो रियल पापी है उनको जो शिक्षा होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सभी पीडीओज आपको मनवी करते हैं, जब तक तनिका होके उस पापी को शिक्षा नहीं मिलता तब तक हमारा ये जो होराट है वो जारी रहेगा। मेरा नाम है विजयशीला, मैं जिला महिला उपाध्यक्ष हूँ। किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है मैडम, आप बोल रहे हैं? सर, अब हमको कैसा है, एक हाउसिंग का काम देते हैं, फिलहाल हम वहाँ जाते कुछ काम करते रहते हैं, तभी फ़ोन आता है इलेक्शन का काम है अर्जेंट वो करो। अभी हम वो काम करते ही रहते हैं, फिर पानी का प्रॉब्लम आ जाते हैं। उसके बाद क्रॉप कटिंग है, दूसरे बहुत सारे वर्क है, जो भी अदर डिपार्टमेंट का वर्क है हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये काम करो वो काम करो। इसके वजह से हमको क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम पे हमारा खाना नहीं हो रहा, और ऊपर से कैसा है बॉडी का प्रेशर हर पंचायत में है कुछ ना कुछ। हम जो लीगली बोलते रहते हैं वो लोग अलग बोलते रहते हैं, इसके वजह से और ऊपर के जो हमारे अधिकारी हैं उनका भी प्रेशर बहुत है, काम का प्रेशर है, हर तरह का यहाँ पे टॉर्चर है। तो हमारे सरकार से दोनों अधिकारी थे, अच्छे आदमी थे, और ऐसा कि किसके साथ का झगड़ा करने वाले थे नहीं थे। और हमारे पंचायत में अगर काम या छोटा या बड़ा करेंगे, और थोड़ा दिन वो पंचायत का काम है, कम ज़्यादा हो गए, लेकिन किसी के साथ ऐसा झगड़े के आदमी नहीं थे। कौन भी अगर काम बोलेंगे तो बराबर आज नहीं तो कल ज़रूर करके देंगे बोल के ऐसा आश्वासन देते थे, और अच्छे काम भी करे। आते आते थोड़ा दिन भी थोड़ा आने के लिए ज़रा देर कर रहे थे, क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्या तो उनका मन में क्या था कि उधर तो हमारे पंचायत में तो काम करे, अच्छा करे, और कुछ काम चालू भी थे, करने वाले भी थे, लेकिन वो ऐसा हो गया। उन्होंने जाने के बाद हमारे को ऐसा बहुत ही तकलीफ हो गया। कैसा कि अच्छा आदमी थे, हमारे भाई बंधु के जैसा आदमी, काम करने वाले आदमी थे, अच्छा मन के आदमी थे, ऐसा अचानक कैसा हो गया बोला कि हमारे पंचायत के सिब्बंदी और हम ग्राम पंचायत के सदस्य सब मिलके बहुत चिंतन करे उसके कैसे हो गए, उनको क्या इधर। तमिलनाडु राज्य में सेना के एक चापर के क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार की दोपहर आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस खबर की पुष्टि हुई है कि आर्मी चीफ रह चुके और अब बतौर चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सेवाएं दे रहे जनरल बिपिन रावत भी इस चापर में सवार थे। जानकारी है कि उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित कई अन्य सैन्य अधिकारी थे। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। चांद हमेशा से ही हमारे लिए आश्चर्य का विषय रहा है। चंद्रमा पर चीन के यूतू रोवर ने एक सुदूर इलाके में रहस्यमय चीज देखी है। ये चीज सबसे दूर दराज इलाके वान कार्मन क्रेटर के नजदीक नजर आई है। ये कुछ झोपड़ी जैसी दिखाई पड़ती है। वास्तव में ये क्या है, चीन के वैज्ञानिक इसका पता लगाने में जुट गए हैं। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ काम करने वाले चाइनीज विज्ञान चैनल आवर स्पेस पर पब्लिश U2 डायरी में इस घटना के बारे में बताया गया है। इस डायरी में कहा गया है कि U2 ने चंद्रमा के उत्तर में क्षितिज पर एक घन के आकार की वस्तु को देखा। ये वस्तु नवंबर में मिशन के 36वें चंद्र दिवस के दौरान लगभग 260 फीट यानी कि 80 मीटर दूर थी। कांग्रेस नेता राशिद खान ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का सिर लाने वाले को 25 लाख रुपए इनाम देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो इनाम देने वाले अपने पुराने बयान पर कायम हैं। साथ ही उन्होंने रिजवी पर इस्लाम को लेकर गलत बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। सोमवार को ही रिजवी धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं। वो इस्लाम को लेकर दिए गए कई बयानों के कारण विवादों में फंस चुके हैं। खान ने कहा कि मैंने वसीम रिजवी पर जो 8 महीने पहले बयान दिया था, जो भी वसीम रिजवी का सिर लाकर देगा मैं उसे 25 लाख रुपए दूंगा। मैं अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई शख्स हमारे धर्म के बारे में गलत बयानबाजी करता है तो सच्चा मुसलमान किसी की भी जान खलम कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि रिजवी लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि हमने कभी भारत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, इसके बावजूद हमें पाकिस्तानी कहा गया। यही जम्मू में हमें पाकिस्तानी कहा जाता था, मुझे खालिस्तानी भी कहा जाता था कि फारूक अब्दुल्ला खालिस्तान से मिले हुए हैं। आज भी न जाने क्या क्या बातें करते हैं। ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे। हम वो नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे आपका और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं और गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं, सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की कांग्रेस के लिए 0 सीट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने मंगलवार को कटाक्ष के साथ जवाब दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अखिलेश यादव एक ज्योतिषी हो सकते हैं और उन्हें लगता है कि कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। हम देखेंगे कि क्या होता है। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछले सप्ताह संवाददाताओं से कहा था कि कांग्रेस इस बार प्रतिस्पर्धा में नहीं है, ये यहाँ केवल विज्ञापन के लिए है। संभव है कि उन्हें 0 सीटें मिले। इससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने उन पर जातिवादी और आपराधिक सरकार चलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और बसपा प्रमुख मायावती जाति और धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोगों की भीड़ ने दुकान से चोरी करने का आरोप लगाकर एक किशोरी सहित 4 महिलाओं की न्यूड परेड निकाली गई। भीड़ ने पहले चारों के कपड़े उतरवा दिए और सड़क पर घसीटकर उनसे मारपीट की। घटना सोमवार को लाहौर से करीब 180 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक किशोरी सहित 4 महिलाओं को अपने आसपास के लोगों से विनती करते हुए देखा गया कि उन्हें बदन ढकने दें, लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी और उन पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान महिलाएं अपनी इज्जत और जान की भीख मांगती रहीं, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में महिलाओं ने कहा कि हमें प्यास लगी थी और उस्मान इलेक्ट्रिक स्टोर के अंदर गए और पानी की बोतल मांगी, लेकिन इसके मालिक सद्दाम ने हम पर चोरी करने के इरादे से दुकान में घुसने का आरोप लगाया। सद्दाम और अन्य लोगों ने हमें पीटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने निर्वस्त्र कर घसीटा और मारपीट की। उन्होंने निर्वस्त्र करने के बाद हमारे वीडियो भी बनाए। भीड़ में से किसी ने भी इस अत्याचार को रोकने के लिए दोषियों को रोकने की कोशिश नहीं की। 200 करोड़ रुपए के वसूली केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने आज अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसको लेकर जैकलीन फर्नांडिस ईडी दफ्तर पहुंची हैं। बता दें कि इससे पहले भी 30 अगस्त 2021 को जैकलीन पहली बार नई दिल्ली में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुई थी। इसके बाद ईडी ने कई समन जारी किए थे। 25 सितंबर, 15, 16 और 18 अक्टूबर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। 20 अक्टूबर को दोबारा उन्हें फिर तलब किया गया। फिर वो जांच में शामिल हुई और अपना बयान दर्ज कराया। बता दें कि 4 दिसंबर को ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर और 7 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। 5 दिसंबर को जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। इसके बाद ईडी ने उन्हें 8 दिसंबर के लिए समन जारी किया था।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी पार्टी ऑफिस बिदर में बीजेपी की प्रेस मीट आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के अलावा सभी बीजेपी नेतागण रहे उपस्थित। एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का किया गया दावा, कांग्रेस पर साधा निशाना। जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस बिदर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया शाखा कर्नाटक NSUI की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। CDS जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में क्रैश। कांग्रेस नेता राशिद खान ने वसीम रिजवी का सिर लाने वाले को 25 लाख का इनाम देने की बात कही। रिजवी पर इस्लाम को लेकर गलत बयानबाजी करने के लगाए आरोप। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।